start with the next concept, which is comparison of numbers, and the other topic, which is rounding of the numbers. Let us understand what are these concepts. First concept, which is comparison of numbers. Comparison of numbers means what? Comparison means what? Your parents mostly compares you, like your friend is more intelligent than you, he scored 80%, you scored 75%. So what is this 80%, 75%? What is this your parents doing? They are comparing the numbers, that is 80 and 75. They are telling you that you have scored less, which is 75, than your friend who have scored 80%. Means what? They are comparing the numbers 75 and 80. So this is what comparison is. This was simple numbers like 75 and 80, two-digit number. But when digits increase, how to compare these numbers, that we were going to learn in this concept. So now I have given you the steps. Follow the steps. First is count the number of digits. If two digits are given to you, for example, let us take a smaller number, which is 300 and 8000. Now I have to compare both these numbers and tell which is a smaller number and which is a bigger number. So first what I have to do? Count the number of digits. So I am counting. See, it is 1, 2, 3. And over here 1, 2, 3 and 4. What conclusion we derive? ये digits ज़्यादा है. When these digits are more, means what? This number is ultimately greater than this number. So first step is what? Count the number of digits. जो नंबर को ज्यादा डिजिट्स होंगे वो बड़ा होगा. Logically also, if you think this is 8000, this is 300, if I say और छोटे नंबर लेते हैं 1 and 10, obviously 10 is more than 1. So this is what first step, count the number of digits. यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, 2 digits, 1 digit. So this number is greater than this. And over here I have 4 digits and over here I have 3 digits. So ultimately 4 digits is greater than 3 digit number. अगर दोनों digit same हुआ तो if I say like this 300 and 800, यहाँ पे भी 3 digits, यहाँ पे भी 3 digits. Now how to compare these numbers? Let us read the next step. See, if the digits are same, then what to do? Move on to the next step, which is what? Compare the first digit. अभी यहाँ पे first digit कौन सा है? It is 3 and over here what it is? It is 8. अभी इन दोनों को कंपेयर करना है. 3 बड़ा है या 8? If I tell you कि I'll give you 3 rupees or else I'll give you 8 rupees according to your wish, then what you will demand? You will ultimately demand 8. Any rational person will demand 8 rupees. Why? Because 8 is greater than 3. So over here what we will do? We will compare the first digit. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है. So which is the greater one? It is 8. So 800 is greater than 300. अभी if same, मतलब यहाँ पे भी समझो 3 है, ओके, 3 and over here I have 8. अभी फर्स्ट डिजिट यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो अब क्या करने का? पहले तो हमने डिजिट्स काउंट किए, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, तो सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया. नेक्स्ट स्टेप पे क्या बोला है? फर्स्ट डिजिट. तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 3 है, यहाँ पे भी 3 है. अब कैसे मैं कंपेयर करूंगी नंबर को? इफ सेम, यू हैव टू सी द सेकेंड नंबर. ओके, सो अभी सेकेंड डिजिट को हम कंपेयर करेंगे. यहाँ पे सेकेंड डिजिट क्या है? 0. यहाँ पे क्या है? 8. So 0 is greater or 8 is greater? 8 is greater, right? So what I will say, this number is greater than this number, means 380 is greater than 300. सेकेंड डिजिट को कंपेयर किया. अभी लेट अस सी कि अगर सेकेंड डिजिट भी सेम हुआ तो क्या करने का? These are the two numbers given to you. यहाँ पे मैंने पहले तो काउंट किया 3 डिजिट. फिर फर्स्ट डिजिट को देखा, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 था. फिर नेक्स्ट डिजिट को देखा 8, ये भी दोनों सेम है. अभी क्या करूँ? थर्ड डिजिट को देखने का. सी ओवर हियर, थर्ड डिजिट. सो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है. सो दिस 382 इज ग्रेटर देन 380. सो अगर 3 डिजिट नंबर है तो ऐसे कंपेयर करना है. और अगर 4 डिजिट है तो समझो 3821 एंड 3820. अब मैं कैसे कंपेयर करूं इनको? पहले तो मैं डिजिट्स काउंट करूंगी, विच इज 1 2 3 4. 1 2 3 4. दोनों पे 4 डिजिट्स के हैं. अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है? फर्स्ट डिजिट. यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 3 है, यहाँ पे भी 3 है. सो अभी क्या करूं? अभी सेकेंड डिजिट को कंपेयर करूंगी. यहाँ पे सेकेंड डिजिट 8 है, यहाँ पे भी 8 है. फिर थर्ड डिजिट विच इज 2. अभी तक तो सब सेम है. अभी फोर्थ डिजिट देखूंगी मैं. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है. सो 1 बड़ा है कि 0? 1.
So this number is greater than this number. Remember, greater sign means this sign. अगर ये नंबर ग्रेटर मीन्स व्हाट, अगर तुम्हें किसी भी चीज को बड़ा दिखाना है ना तो ये मुंह खुला हुआ होना चाहिए एरो का, एंड दिस पॉइंटर शुड पॉइंट टुवर्ड्स अ लेसर अमाउंट और स्मॉलर अमाउंट. जैसे कि यहाँ पे 1 बड़ा है और 0 छोटा है, सो दिस इज द वे. और मुझे छोटा दिखाना है तो जैसे 1 और 10 है तो मैं पॉइंटर इस तरफ पॉइंट करूंगी 1 की तरफ, क्योंकि ये छोटा है और जो खुला हुआ मुंह रहेगा वो बड़े नंबर की तरफ. सो दिस इज द स्मॉलर देन साइन, दिस इज द greater than sign. So over here this number is greater than this number. So this is how we compare the digits. कितने भी नंबर के डिजिट्स क्यों ना हो, हम स्टार्टिंग फर्स्ट नंबर से करेंगे एंड सो ऑन. इट विल गो टू द नेक्स्ट डिजिट. मतलब क्या, अगर इनफाइनाइट भी दिया है ना 3, 8, 2, 1, 0, 6, 5 and the another number is given as 3, 8, 2, 1, 0, 6 and 4. So what I will do, पहले तो काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स विच इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. मतलब दोनों भी डिजिट्स तो सेम है. अभी फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सेम है. यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 5 है, बट यहाँ पे क्या है 4. तो नंबर कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला नंबर. सो दिस इज ग्रेटर देन दिस नंबर. सो दिस इज हाउ यू कंपेयर द डिजिट्स. रिमेंबर दिस स्टेप्स. पहले तो डिजिट्स को काउंट करना है, फिर आगे से कंपेयर करते जाना है जब तक डिजिट चेंज नहीं होता. जैसे यहाँ पे 5 और 4 में चेंज आ रहा है तो फिर इन दोनों को ही कंपेयर करना है. डोंट कंपेयर दिस नंबर, ये तो अल्टीमेटली सेम है. सिर्फ लास्ट के डिजिट्स को कंपेयर करना जो चेंज हो रहा है, लास्ट के या मिडल के. इफ बीच में से चेंज हो रहा है तो फर्स्ट चेंज इन डिजिट शुड बी कंपेयर्ड. अगर यहाँ पे चेंज आता, जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो मैं क्या करती, ये 2 है, ये 1 है, मतलब कौन सा बड़ा है, पीछे के डिजिट को फिर देखना ही नहीं है. अगर यहाँ पे ही चेंज आ गया, सो लुक ओवर हियर, द चेंज इज ओवर हियर. सो आई विल कंपेयर दिस टू नंबर्स. 2 is greater than 1, so I will say this number is greater than this number. So this is how you compare the numbers. Now let us understand what is rounding off of the numbers. राउंडिंग ऑफ मतलब क्या. फॉर एग्जाम्पल आपने स्कोर किया 90.03%. So what you will say, how much did you score, when your uncle or aunt will ask you how much percentage did you score. So what you will say, I scored 90%. Isn't it? 03 को you cannot round it off to 91. Okay. So you said I scored 90%. If I say you scored 90.57%. What you will say, I scored 91%. So how this is done, that we will understand. Rounding off ना बहुत सारे digits के होते हैं. Like ones और unit place rounding off. मैंने पहले ही बताया what is unit. Unit means one digit. For suppose if I say 4, इसको किस तरफ round off करोगे. Remember, 1 digit मतलब कितने digits होंगे, 1 to 10 के बीच में. तो what I will do, 10 जो सबसे बड़ा digit है ना उसका divide by 2 करूँगी. तो 10 divided by 2 कितना होगा, 5. तो अगर 5 से बड़ा नंबर होगा ना तो मैं इसको 10 की तरफ धकेलूंगी. लंबा लाइन याद रखो ना, 0 to 5 के बीच में होगा ना तो आई राउंड इट ऑफ टू 0. वो 0 हो जाएगा क्योंकि वो 0 और 5 के बीच में आ रहा है. और अगर 5 और 10 के बीच में आ रहा है तो मैं उसको 10 की तरफ राउंड ऑफ कर दूंगी. तो अगर यहाँ पे 4 है, 5 से छोटा है, राइट, तो दिस विल बी राउंडेड ऑफ टू व्हाट, 0. सो दिस इज हाउ यूनिट प्लेस इज राउंडेड ऑफ. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टेंस प्लेस इज राउंडेड ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिवन 12, द नंबर 12. हाउ डू यू राउंड ऑफ दिस 12? 2 डिजिट नंबर्स देखो कहाँ से कहाँ तक होते हैं. 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं. और एंड कहाँ पे होते हैं, 100. तो सबसे 100 पे एंड होता है, मतलब 100 से पहला वाला डिजिट विच इज 99. तो डिजिट्स किसके बीच में रहते हैं, 10 to 100 के बीच के जो डिजिट्स रहते हैं वो 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, राइट. तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर के बाद वाला नंबर लेना. सपोज 100, तो 100 को मैं डिवाइड बाय 2 करूंगी. सो 100 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट, 50. सो 50 से अगर छोटा वाला अमाउंट होगा ना तो वो किस तरफ राउंड ऑफ होगा, टेंस प्लेस. मतलब क्या, 0 के
देखना है 5 to 10 के बीच में आ रहा है तो 10 की तरफ राउंड ऑफ करना है, और 0 to 1 की तरफ, 0 की तरफ आ रहा है तो 0 में राउंड ऑफ करना है। जैसे यहाँ पे 4 0 हो गया। अभी टेंस का देखते हैं हम। टेंस में समझो 12 लिया है, तो 12 का राउंडिंग ऑफ क्या होगा? सी दिस, देखना है फिर टेंस में है तो 10 और 20 को देखना है, 10 और 20, क्योंकि इन दोनों के बीच में 12 आता है, राइट? 10 और 20 के बीच में, तो 10 और 20 के बीच में 12 आता है, तो उन दोनों को कंपेयर करना है। 20 और 10 के बीच, एग्जैक्ट बीच में क्या आता है? 15 आता है, राइट? 10 और 20 के बीच में 15 आता है, तो देखना है कि ये 15 से छोटा वाला नंबर है कि 15 से बड़ा वाला नंबर है। लुक एट दिस, 12 इज बिटवीन 0 और 10 to 15, तो इसको मैं किस तरफ राउंड ऑफ करूंगी? 10 की तरफ राउंड ऑफ करूंगी, क्योंकि ये 10 के पास में है कंपेयर टू 20। 20 से तो बहुत दूर है, राइट? तो हम इसको 20 नहीं लिख सकते, हम इसको 10 लिखेंगे। अगर मैं 18 बोलूं तो ये 15 से बड़ा है, राइट? मतलब ये किसके बीच में आता है? 15 और 20 के बीच में, तो इसको मैं किस तरफ राउंड ऑफ करूंगी? 20 की तरफ राउंड ऑफ करूंगी। इन शॉर्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, टेंस का अगर राउंड ऑफ पूछा है ना तो 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट, एनी 2 डिजिट, फिर उसका नियरेस्ट टेंस को फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे 18 है तो इसका नियरेस्ट दोनों तरफ 10 को फाइंड करना है। 18 के सबसे छोटा वाला 10 कौन सा आता है? 18 से पहला वाला 10 आता है, और 18 से बड़ा वाला टेंस में कौन सा नंबर आता है? 20 नंबर आता है। इन दोनों के बीच में 18 आता है। फिर तुम्हें देखना है कि ये एग्जैक्ट बीच में, विच इज 15, या 15 से छोटा है या 15 से बड़ा है। अगर 15 से बड़ा है तो वो बड़े वाले नंबर की तरफ जाएगा। जैसे यहाँ पे 18 है जो 15 से बड़ा है तो वो 20 की तरफ गया। यहाँ पे 12 है जो 15 से छोटा है तो ये किस तरफ गया? 10 की तरफ गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंपेयर एनी नंबर लाइक 98, इसको मैं किस तरफ राउंड ऑफ करूंगी? पहले तो मुझे देखना है 90 के पहले वाला कौन सा टेंस में आता है, 90 के बाद, 98 के बाद वाला नंबर कौन सा टेंस में आता है? 98 के पहला वाला नंबर होता है 90, क्योंकि 90 के पीछे 0 आता है, मींस व्हाट इट इज इन टेंस। 0 में राउंड ऑफ करना है इन शॉर्ट। फिर इस तरफ देखूंगी मैं तो क्या आता है? 100 आता है। तो 98 को मैं किस तरफ राउंड ऑफ करूंगी? बीच का नंबर लूंगी 95, तो 95 के बड़ा है कि ये नंबर छोटा है? 95 से बड़ा है, मतलब ये किसके बीच में? 95 और 100 के बीच में, तो मैं इसको 100 की तरफ राउंड ऑफ करूंगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राउंड ऑफ। सिमिलरली अगर यार अगर मैं हंड्रेड्स में बोलूँ तुम्हें राउंड ऑफ करने, तो अगर समझो 565 है, हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना मतलब क्या? पीछे 2 0 आने चाहिए। ओके, यहाँ पे 65 है तो अब तुम क्या देखोगे? 65 के 2 डिजिट 0 to 100 लेना अभी, ठीक है? जब टेंस बोला था तो हम 10 का गैप ले रहे थे, जैसे 12 के लिए हम 10 और 20 ले रहे थे, तो 10 और 20 के बीच में कितने यूनिट्स आते हैं? 10, मतलब उनके बीच का 10 का गैप था। यहाँ पे यूनिट्स था इसलिए 1 सिंगल फिगर आ रहा था डिफरेंस में। सेम ओवर हियर, ये राउंड ऑफ 100 का राउंड ऑफ कैसे होगा? 2 डिजिट के बीच में 100 का गैप होना चाहिए, जैसे 0 to 100, ओके? और 100 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, ऐसे 100 का गैप होना चाहिए। नाउ लुक एट दिस फिगर 565, ये 65 को देखना है हम किस तरफ क्लोज कर सकते हैं। 50 से छोटा अगर अमाउंट रहेगा ना तो वो पिछले वाले मतलब 500 हो जाएगा इसका, अगर 50 से छोटा अमाउंट 500 के बाद का अमाउंट है तो। और अगर 50 से बड़ा है, जैसे यहाँ पे 65 दिया है विच इज ग्रेटर देन 50, सो इसको मैं ग्रेटर साइड पे राउंड ऑफ करूंगी 100 के, विच इज 600। गेटिंग? और अगर यहाँ पे 45 होता तो, अगर 45 होता तो 45 50 से छोटा है तो ये किस तरफ राउंड ऑफ होगा? 500 की तरफ। सो द आंसर वुड हैव बीन व्हाट? 500. Lot of students waste their precious time watching cartoons, movies, reality shows on TV. Then they waste their time on social networking sites. When the students sit to study, they are unable to concentrate to get your studies finished, and they get low marks in exams. Parents shell out tons of money from their pockets for coaching classes. But who knows what is taught in these classes? Teachers at times get bugged up when you ask them questions. YouTube has a lot of information but little of use. This is where Study Spectrum TV channel comes in picture.
Every chapter explained by different teachers with different examples and repeat telecasts. We remember 20% of the audio ads we hear, 30% of the printed items we see. But we remember 70% of the audio visuals. That is why video teaching is a powerful medium to learn. After watching Study Spectrum TV channel, you get a peaceful sleep with no tensions and no worries. You devote less time towards your studies and you get better marks in your exams. Visit us on www.studyspectrum.com. Follow us on Facebook. So what are you waiting for? Subscribe for Study Spectrum TV channel and keep edifying. Thousands में round off कैसे करते हैं? Rounding off in thousand means what? The answer should be in thousand. जैसा 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000. So answer should be in thousands. 0 0 0 होना चाहिए, 3 zeros पीछे. Now if I give you a number like 4 6 9 5, इसको तुम thousands में round off करो. So किस side में round off करोगे? तो thousands का gap लेना है दो numbers के बीच में, right? So the first number is 4, तो एक तो 4000 होगा और एक 4 से बड़ा which is 5000. तो ये नंबर कौन से thousands के बीच में आता है? 4000 और 5000 के बीच में आता है. अभी नेक्स्ट नंबर देखना है 6. रिमेंबर 4000 और 5000 के बीच एग्जैक्ट बीच वाला नंबर क्या होगा? 4500. तो अगर ये 4500 से छोटा वाला नंबर है तो ये 4000 की तरफ राउंड ऑफ होगा और 4500 से बड़ा वाला नंबर है तो 5000 की तरफ राउंड ऑफ होगा. तो ये 4500 से बड़ा है, राइट? 45 इज स्मॉलर देन 46. सो ये बड़ा है मतलब कौन से साइड में राउंड ऑफ होगा? बड़े वाले साइड पे. तो द आंसर विल बी राउंडिंग ऑफ दिस इनटू 1000 इज व्हाट? 5000. सो क्लियर? यूनिट्स बोला है तो 5 को देखना है, 5 को देखना है, बीच वाले नंबर को देखना है. यूनिट्स बोला है मतलब 1 to 9. इनके बीच में वाला नंबर कौन सा है? 5. अगर 5 से छोटा नंबर है तो वो 0 की तरफ राउंड ऑफ होगा. 5 से बड़ा वाला नंबर है तो वो 10 की तरफ राउंड ऑफ होगा. फिर टेंस अगर बोला है ना तो दो 10 वाले डिजिट को देना है, मतलब लास्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा? 0. जैसे 18 किन दो 0 के बीच में आता है? एक तो 10 के बीच में आता है, एक 20 के बीच में आता है. फिर देखना है कि ये 10 और 20 के बीच वाला नंबर कौन सा है. तो बीच वाला नंबर इज व्हाट? 15. अभी देखना है 15 से छोटा है कि 15 से बड़ा है. अगर 15 से छोटा होगा तो वो 10 की तरफ राउंड ऑफ होगा और 15 से बड़ा है तो वो किस तरफ राउंड ऑफ होगा? बड़े वाले साइड विच इज 20. तो सेम यहाँ पे 18 जो है वो 15 से बड़ा है इसलिए हमने उसको 20 की तरफ राउंड ऑफ कर दिया. नाउ विथ हंड्रेड्स का राउंड ऑफ कैसे होता है? 100 मतलब क्या? पीछे तुम्हें 2 0 चाहिए, पीछे कोई भी नंबर नहीं चाहिए. तो इफ द नंबर इज 545 तो देखो 45 है लास्ट में, तो पहले तो देखना है दो 0 के बीच में क्या नंबर. अभी ये 545 है तो ये किन दो हंड्रेड्स के बीच में आता है? एक तो 500 के बीच, 500 से बड़ा है तो 500 स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट क्या होगा? 600. मीन्स व्हाट? 545 इज बिटवीन 500 एंड 600. फिर इनको कंपेयर करना है कि ये किस तरफ राउंड ऑफ हो सकता है. तो ये 545 है, ये इनके बीच का नंबर क्या है? 500 और 600 के. 500 और 600 के बीच वाला नंबर है 550. तो ये देखना है 550 से अगर छोटा होगा तो 500 की तरफ राउंड ऑफ होगा. 550 से बड़ा वाला नंबर है तो ये किस तरफ राउंड ऑफ होगा? 600. तो ये कौन सा नंबर है? 545. इसलिए मैंने इसको 500 के साथ राउंड ऑफ किया. बट अगर ये 565 होता तो ये 550 से बड़ा है, राइट? क्योंकि 500 और 600 का बीच वाला नंबर क्या होता है? 550 मीन्स 550. तो 550 से ये बड़ा है, 565 है तो ये किस तरफ राउंड ऑफ होगा? 600. तो दिस इज हाउ हंड्रेड्स का राउंड ऑफ होता है. 1000 का कैसे होता है? जैसे ये वाला नंबर था 4695. तो हमने क्या देखा कि ये किन दो थाउजेंड्स के बीच में आता है? तो ये 4695 4000 5000 के बीच में आता है. तो हमें देखना है कि 4000 और 5000 के एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आता है. तो 4000 और 5000 के एग्जैक्ट बीच में जो नंबर आता है वो है 4500. तो 4500 से छोटा वाला नंबर होगा तो वो 4000 की तरफ राउंड ऑफ होगा
और 4500 से बड़ा वाला नंबर है तो किस तरफ राउंड ऑफ होगा 5000। तो ये 4500 से बड़ा है राइट, इसलिए मैंने इसको 5000 की तरफ राउंड ऑफ किया। अब देखते हैं 10,000 में कैसे राउंड ऑफ होता है। सपोज आई गिव यू द नंबर एज 46,500, ओके, एंड इफ आई से राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10,000, तो इस नंबर को देखो 46,500, इसके पहले वाला 10,000 कौन सा होगा 46,000, और इसके बाद वाला कौन सा होगा 47। सपोज यहाँ पे 2 लिख देती हूँ मैं क्योंकि ये एग्जैक्ट बीच में आ रहा है राइट। तो 46,000 पहले वाला 10,000 है और 47,000 उसके बाद वाला 1000 है 10,000 में। तो इस नंबर को देखना है लास्ट के 3 डिजिट के। तो ये अगर 500 से बड़ा वाला नंबर है तो ये 47,000 की तरफ राउंड ऑफ होगा, और 500 से छोटा वाला नंबर है तो ये किस तरफ होगा 46,000 की तरफ। तो दिस इन दोनों के सी 46,000 एंड 47,000, इन दोनों के now let us see how to round it off a number in 10,000s. Suppose a number is given to you which is 46,575. This is the number. So what you have to do, you have to check इससे पहले वाला 10,000s में नंबर कौन सा आता है, इसके बाद वाला कौन सा आता है। So the preceding 10,000s number for this number is what 46,000, and इसके बाद वाला 10,000s में कौन सा आता है 47,000. So this number lies between these two 10,000s. So what you have to do, इन दोनों का बीच का नंबर फाइंड करना है which is what 46,500. अगर नंबर इससे छोटा हुआ ना, अगर इससे पहले नंबर आया ना तो वो इस तरफ राउंड ऑफ होगा, इसके बाद आया तो वो इस तरफ राउंड ऑफ होगा। टेल मी दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर और स्मॉलर देन दिस नंबर। ये 500 है, ये 575 है, मीन्स व्हाट दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो अगर बड़ा नंबर होगा इससे तो किस तरफ राउंड ऑफ होगा 47,000। सो द आंसर इज 47,000. सो दिस नंबर विल बी राउंडेड ऑफ टू व्हिच नंबर 47,000. Now the next, which is in lakh. Now how to round off a number in lakhs. For suppose if I say you that is 2,65,895. So this is the number given to you. Now क्या करना है, इसके पहले वाला लाख देखना है, इसके बाद वाला लाख देखना है। तो इसके पहले कौन सा नंबर होगा, ये 2 लाख से बड़ा वाला नंबर है, मतलब इसके पहले वाला कौन सा लाख होगा 2 लाख। तो एक 2 लाख होगा, एक कौन सा होगा इसके बाद 2 लाख के बाद कौन सा लाख आता है इमीडिएट लाख 3 लाख। सो 3 लाख। इन दोनों के बीच वाला नंबर कौन सा होगा 2,50,000, क्योंकि सिंपल एज दैट। अगर तुम्हें नहीं आता तो ये इनको और इनको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। सो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, सो 5 डिवाइडेड बाय 2 विच कम्स टू व्हाट 2.5, मींस व्हाट 2,50,000 लाइज बिटवीन 2 लाख एंड 3 लाख। सो 2,50,000। अगर इससे बड़ा वाला अमाउंट है तो वो 3 लाख की तरफ राउंड ऑफ होगा, क्योंकि इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा है तो वो बड़े वाले साइड पे राउंड ऑफ होगा, तो वो 3 लाख की तरफ राउंड ऑफ होगा। पर अगर इससे छोटा वाला नंबर है ना तो वो 2 लाख की तरफ राउंड ऑफ होगा। नाउ द नंबर गिवन टू यू इज ग्रेटर देन 2,50,000 और स्मॉलर देन 2,50,000। इट इज ग्रेटर देन 2,50,000 राइट। तो ये किस तरफ राउंड ऑफ होगा 3 लाख की तरफ। अनदर एग्जांपल, सपोज आई गिव यू 4,95,826। इसका प्रीसीडिंग लाख कौन सा है 4 लाख। सो आई हैव 4 लाख एंड इसके बाद वाला लाख कौन सा है 5 लाख। अभी ये 4 लाख और 5 लाख के बीच वाला अमाउंट क्या है 4,50,000। सो आई राइट 4,50,000। सो अगर 4,50,000 से छोटा वाला नंबर है तो वो 4 लाख की तरफ राउंड ऑफ होगा, और 4,50,000 से बड़ा वाला नंबर है तो वो किस तरफ राउंड ऑफ होगा 5 लाख। नाउ लुक एट दिस नंबर 4,95,825। ये 4,50,000 से छोटा वाला नंबर है कि बड़ा वाला, ऑब्वियसली 50 से बड़ा 95 होता है राइट।
So this number is greater than 4,50,000. So it will be rounded off to which side? 5 lakh. So this is how we have to do. अगर यूनिट्स पूछा है तो 0 to 10 लेना है और देखना है कि वो नंबर बीच का नंबर 0 to 10 के बीच में क्या है 5. अगर 5 से छोटा है तो वो 0 की तरफ जाएगा, 5 से बड़ा है तो 10 की तरफ जाएगा. फिर अगर टेंस में बोला है तो 10 20 ऐसे 10 का गैप लेना, 10 20 20 30 40 50 50 60 ऐसे. फिर जो नंबर है बीच का नंबर मतलब 10 और 20 के बीच में क्या आता है 15. If the number is smaller than 15, you have to round it off to which side? 10 side. And 15 से बड़ा है तो which side? 20 side. अभी 20 30 के बीच में आ रहा है तो जैसे 28. तो देखना है 20 और 30 के बीच वाला नंबर कौन सा है. 20 और 30 के बीच में 25 आता है. तो 25 से अगर छोटा है तो वो 20 की साइड जाएगा. 25 से बड़ा है तो कौन सी साइड जाएगा 30. The number given to us is what? 28. It is greater than 25. तो किस तरफ जाएगा 30 की साइड जाएगा. अभी हंड्रेड्स में कैसा होता है 326 is given to you. तो 326 का प्रीसीडिंग 100 कौन सा है 300 और 326 के बाद वाला 100 कौन सा है 400 और 300 और 400 के बीच वाला वैल्यू कौन सा है 350. तो 326 350 से छोटा है राइट. तो किस तरफ जाना होगा छोटे वाले साइड विच इज 300. सेम विथ thousands, 10,000 and lakh. So clear with what is rounding off.